A very good o'clock to all the day students. Here I am Nikita ma'am, your geography teacher. Students, today we are going to start the explanation of our second chapter, that is geographic grid, latitudes and longitudes. So we have already know about latitudes and longitudes, what are the latitudes and longitudes, and we are also familiar with a geographic grid, or at least a grid. What is a grid? It's an intersection of horizontal and vertical lines that is basically used to point or locate a particular location, particular point on a uh, map or on a surface. Okay, so geographic grid is also the intersection of latitudes and longitudes which we use to find out location of a particular place on a map or a globe. Okay, most maps allow us to specify the location of points on the earth's surface using a coordinate system, and this coordinate system is also known as the grid system. Okay, what is this coordinate system? Where the x-axis and y-axis meet each other. Okay, and when we have to find the location of a place or the coordinates of a place, say this is starred place at here, here is the starred place. Okay, अगर इसकी हमें लोकेशन निकालनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट विल वी डू, we'll find out its coordinates in the on the x axis and also on the y axis. ओके, ये स्टार पॉइंट है, x axis पे जो इसकी लोकेशन है दैट इज़ 7 एंड y axis पे है 4. ओके, सो ये होगा इसके coordinates. एंड whenever we write the coordinates of a place, first of all we write the x axis and then write the y axis. Okay, moving further, this similar system can be used to find the location of a point or a place on a globe. Okay, say this point A. Okay, this point A on the globe. Okay, that is now what will we do? Firstly find out the y-axis. Let's say this latitudinal position. Okay, so what is the latitudinal position of this place? The latitudinal position will be found out by this 20 degree. Okay, this is 20 degree north. Okay, latitudes are written as north and south and longitudes are written as west and east. Okay, and what is the latitudinal position? That is 45 degree west. So what will be its location? 20 degree north, 45 degree west. Okay, so this system of intersecting lines is known as a grid system. What is it called? It is known as a grid system. Okay, and in a globe, north pole and south pole are used as the point of reference. Okay, since we have 0 on this coordinate system as a point of reference, मतलब 0 पॉइंट से हम देखते हैं कि किसी भी प्लेस की जो लोकेशन है वो कितना एक्स एक्सिस पे कितना दूर है और वाई एक्सिस पे कितना दूर है. उसी तरीके से हम जो पॉइंट ऑफ रेफरेंस ग्लोब पर लेते हैं, दोज आर दी नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. ओके, नाउ why are these places located in degrees? We know that the earth is a round or circle, and a circle is comprised of 360 units called degrees. Okay, circle किससे बनता है? 360 यूनिट से ही बनता है, डिग्री से बनता है. ईच डिग्री कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 60 मिनट्स, और वी ऑल नो दैट एक डिग्री को 60 मिनट्स में डिवाइड कर सकते हैं. फॉर फर्दर स्पेसिफिकेशन अगर और डिटेल स्टडी करनी है तो हम मिनट्स को 60 सेकेंड्स में डिवाइड कर सकते हैं. ओके, दैट वी ऑलरेडी नो. जब हमने लैटिट्यूड पढ़ा था तो ये चीज़ हमने पहले भी देखी थी, या सॉरी मेरिडियंस पढ़ते टाइम हमने ये चीज़ ऑलरेडी देखी थी कि जो डिस्टेंस होता है दैट इज़ 1 minute equals to 1 degree equals to 60 minutes. Okay, now there are two sets of imaginary lines drawn, circles that drawn around the globe. These are latitudes, parallels of latitudes, and meridians of longitudes. Okay, so this network of parallels of latitudes and meridian of longitudes is known as the geographic ग्रिड. ओके, इनके इंटरसेक्शन से बनने वाला जो नेटवर्क होता है इसे हम जोग्राफिक ग्रिड कहते हैं. एंड व्हाट डज इट डू? इट हेल्प्स अस टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ अ प्लेस ऑन द अर्थ बाय राइटिंग द वैल्यू ऑफ लैटिट्यूड. जब हम लैटिट्यूड की वैल्यू लिखते हैं किसी भी प्लेस की तो दैट इज़ फॉलोड बाई नॉर्थ एंड साउथ, क्योंकि जो लैटिट्यूड्स होती है वो हमें इक्वेटर से किसी भी प्लेस, कोई भी प्लेस कितना नॉर्थ में है कितना साउथ में है उसकी डिस्टेंस बताती है. एंड वाइल वी राइट लॉन्गिट्यूड, तो इट इज़ फॉलोड बाय दी
लेटर ई और डब्ल्यू विच मीन्स ईस्ट और वेस्ट, जो हमें किसी भी प्लेस की लोकेशन प्राइम मेरिडियन के रेस्पेक्ट में कितना ईस्ट है या कितना वेस्ट है वो बताती है. ओके, नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड. ओके, so latitude is an angular distance north or south of the equator that is measured from the center of the earth. Okay, what is an equator? We know that it's the longest latitude that divides the earth into two equal halves, that is northern hemisphere and the southern hemisphere. So this latitude is an angular distance, means distance measured in angle north or south of the इक्वेटर. ओके, किसी भी प्लेस का अगर हमें पता करना है कि इक्वेटर से कितना नॉर्थ में है या कितना साउथ में है, दो ही जगह लाई करेगा, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में या सदर्न हेमिस्फीयर में, तो उसमें कोई प्लेस कितना नॉर्थ है ये इक्वेटर से, दिस इज़ द रेफरेंस पॉइंट जिसको हम इक्वेटर कहते हैं, और यहाँ से कोई प्लेस कितना नॉर्थ में है या कितना साउथ में, ये सब आप देख रहे हैं मार्किंग्स है. दिस इज़ द 0 डिग्री जो कि हमारा इक्वेटर, देन 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, एंड सिमिलरली इन द सदर्न हेमिस्फीयर ऑल्सो. ये हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये सदर्न हेमिस्फीयर है. दोनों में हम देख सकते हैं इजीली कि कोई पॉइंट जो है वो कितना दूर है. ओके, सो ये हम देखते हैं लैटिट्यूड्स की हेल्प से. ओके, सो द लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड रन पैरेलल टू ईच अदर, ये हमें पता ही है, इसीलिए हम इन्हें पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स कहते हैं. ये सारी लाइन्स जो इक्वेटर के पैरेलल रन करती हैं, बट द डिफरेंस इज दैट एंड दीज लाइन्स आर होल सर्कल्स. जो लाइन्स हैं ये होल सर्कल्स हैं. ओके, ये पूरे सर्कल्स होते हैं. ऑल्दो वी कॉल देम लाइन बट दीज आर दी होल सर्कल्स. ओके, एंड ये जो सर्कल्स होते हैं वो इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हुए इनकी लेंथ जो है शॉर्ट होती जाती है. ओके, जो इक्वेटर वाला सर्कल होता है और जो 60 डिग्री वाला सर्कल होता है, 60 डिग्री वाले सर्कल की जो लेंथ होती है, जो 60 डिग्री नॉर्थ, दिस वन लैटिट्यूड इज़ दी हाफ ऑफ द इक्वेटर. ओके, इक्वेटर का हाफ होता है ये. ओके, सो फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ अ लोकेशन वेरियस प्लेसेस ऑफ द अर्थ सरफेस, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको. एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए 1 डिग्री को हम 60 मिनट्स में डिवाइड करते हैं, एंड ईच मिनट ऑफ द लैटिट्यूड इज़ फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 60 सेकेंड. Okay, so the minute is further subdivided into 60 seconds. The length of an arc of 1 degree of latitude is approximately 111 kilometers. ग्लोब पे जब हम 1 डिग्री लैटिट्यूड बोलते हैं तो उसका मतलब है कि उस जो डिस्टेंस हमने 1 डिग्री में तय की है वो ग्राउंड पर है 111 किलोमीटर्स. हाउएवर अर्थ एज स्लाइटली फ्लैटन एट द पोल्स, हमें पता है कि पोल्स पर जाके अर्थ थोड़ी सी फ्लैट हो जाती है, तो जो आर्क की डिस्टेंस होती है 1 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड की वो पोल्स पर थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, लिटिल लॉन्गर देन द इक्वेटर. ओके, so the earliest method of finding out the latitude of a place is to measure the vertical angle. सबसे पहले जो हम तरीका यूज़ करते थे किसी भी प्लेस के लैटिट्यूड को पता करने के लिए, वो हम क्या करते हैं, द फाइंड आउट मेजर करते हैं द वर्टिकल एंगल ऑफ पोल स्टार. उस जगह से पोल स्टार का वर्टिकल एंगल हम मेजर करते हैं. ओके, द लैटिट्यूड ऑफ अ प्लेस इज इक्वल टू द एंगल और एल्टीट्यूड ऑफ द पोल स्टार. ओके, पोल स्टार से उस प्लेस की हाइट कितनी है या उस प्लेस से पोल स्टार की हाइट कितनी है, उससे हम पता लगाते हैं कि उस प्लेस का लैटिट्यूड या एंगल क्या है. ओके, दस इफ द एल्टीट्यूड ऑफ द वर्टिकल एंगल ऑफ द पोल स्टार फ्रॉम अ प्लेस इज 40 डिग्री, अगर एक प्लेस से जो एंगल है पोल स्टार का वो 40 डिग्री है तो उस प्लेस की लैटिट्यूड हम मानेंगे 40 डिग्री नॉर्थ. ओके, तो लैटिट्यूड कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड विद रेफरेंस टू द जेनिथ डिस्टेंस. जेनिथ डिस्टेंस से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं. वो क्या होता है, द एंगल दैट सन मेक्स विद द जेनिथ ऑफ अ प्लेस एट 12 नून. एक प्लेस के जेनिथ से, जेनिथ मतलब द टिप ऑफ दैट प्लेस, वहाँ से अर्थ सन जो एंगल बनाता है 12 नून पर 12 बजे, उसको हम कहते हैं जेनिथ डिस्टेंस. ओके, एंड द डिक्लाइनेशन ऑफ द सन, मानने की डिक्लाइनेशन ऑफ द सन क्या है, द एंगल दैट सन मेक्स नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर ऑन अ पर्टिकुलर डे. एक दिन पर जो सन है वो इक्वेटर के नॉर्थ या साउथ पर कौन सा एंगल बना रहा है, कितना एंगल बना रहा है, दैट इज़ द एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन ऑफ द सन. ओके, एंड फ्रॉम डे टू डे इट इज़ प्रोवाइडेड फ्रॉम द नॉटिकल एल्मेनेक. ओके, एल्मेनेक एक टूल होता है मेजर करने के लिए कि सन की रेज जो कितने एंगल पर पड़ रही हैं. ठीक है, तो उससे भी हम किसी प्लेस का लैटिट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके,
सो द इक्वेटर इज़ एन इमेजिनरी लाइन. इक्वेटर क्या है? एक इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, दैट इज़ नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर. इट इज़ अ रेफरेंस लाइन फॉर मेजरिंग डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस टू द नॉर्थ एंड साउथ. एक रेफरेंस लाइन है, मैं पता ही है इक्वेटर से ही नॉर्थ या साउथ में हम किसी भी प्लेस का डिस्टेंस देखते हैं. और इक्वेटर को हम क्या मानते हैं? इसका हम के लिए 0 डिग्री लैटिट्यूड मानते हैं. ओके, सो ऑल पॉइंट्स ऑफ द नॉर्थ ऑफ इक्वेटर आर कॉल्ड नॉर्थ लैटिट्यूड्स. पता ही है हमें. और नॉर्थ में जब भी हम किसी भी लैटिट्यूड को देखेंगे तो इट विल बी फॉलोड बाई द कैपिटल लेटर N, जिसका मतलब है नॉर्थ लैटिट्यूड्स. और साउथ में इक्वेटर के हम देखेंगे तो दैट विल बी फॉलोड बाई कैपिटल लेटर S, जिसका मतलब है साउथ लैटिट्यूड्स. ओके, that's all for today. Thank you. Hope it is clear to you all.